بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں شمشاد مانگٹ. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. آج بھی ہم بات کریں گے سی ڈی اے کے حوالے سے، اور سی ڈی اے میں جو بل بورڈ کا ایشو ہے اس حوالے سے بات کریں گے. جناب سندھو صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد چونکہ ایک ماسٹر پلان کے مطابق بنا ہوا شہر ہے، لیکن یہاں پہ بل بورڈ لگے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے. کیا اس کی کیا پالیسی ہوتی ہے؟ پیسہ کدھر آتا ہے؟ کن کو یہ ٹھیکے ملتے ہیں؟ کیا یہ سلسلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام آباد ایک ماسٹر پلان کے تحت بنا ہے جی. ایک پلانٹ سٹی ہے، اور اسی طرح آگے ریگولیشنز ایگزسٹ کرتے ہیں، پالیسیز ایگزسٹ کرتی ہیں کہ باقی جو ڈیولپمنٹ کے بھی ڈیفرنٹ ایشوز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. اسی طرح ہی جو ایڈورٹیزمنٹ کے نام پہ جو بل بورڈز کی بات کر لیں، پہلے بینرز لگتے تھے یا سٹیمرز لگتے ہیں یا ایل سی ڈیز لگتی ہیں. اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتاؤں کہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ایڈورٹیزمنٹ کنٹرول کمیٹی بنی تھی. وہ کمیٹی ہیڈ کرتا تھا ڈپٹی ڈی جی پلاننگ، اور اس میں ڈی ایم اے کا نمائندہ ہوتا تھا اور 2-3 اس طرح کے اور افسر شامل کر کے تو وہ کمیٹی بنائی ہوئی تھی. اس کی ریزن تھی، اور یہ باقاعدہ نوٹیفائڈ ہے، بورڈ کی اپرووڈ ہے اور ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ پچھلے سالوں سے آپ کہہ لیں کہ ڈس فنکشنل ہو گئی ہے یا اس کو بالکل ڈسکارڈ کر دیا گیا ہے. اس کا صرف بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو بھی بورڈز لگیں پلاننگ پوائنٹ آف ویو سے اس کی فیزیبلٹی دیکھی جائے کہ اس کا کوئی ٹریفک کا امپیکٹ تو نہیں ہو رہا ہے، اس کا کوئی ویزیبلٹی تو نہیں ڈسٹرب ہو رہی، اس کی کوئی ویژول پولوشن تو نہیں ہو رہی. لیکن وہ جو کمیٹی ہے اور وہ جو میں کہہ رہا ہوں پالیسی، وہ آلموسٹ ڈسکارڈڈ ہے. اس کے پچھلے کئی سالوں سے اس پہ عمل نہیں ہو رہا. صحیح. اس کا نتیجہ دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی بورڈ لگ رہا ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ لیفٹ ٹرن کرنے والے کو اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا، رائٹ ٹرن کرنے والے پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، سیدھے جانے والے پہ ہوگا. پھر بورڈ کا سائز ہوتا تھا اور باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت کچھ پیرامیٹر جس کے تحت اس کو دیکھا جاتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اور تعداد بھی بورڈز کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پہلے بہت لمیٹڈ نمبر آف بورڈز ہم نے رکھے ہوئے تھے. آبادی بھی تو بڑی ہے نا سر؟ دیکھیں، آبادی بڑھنے سے بورڈز نے نہیں بڑھنا. ہاں، بورڈز نے نہیں بڑھنا. بات یہ کہ یہ چیزیں تو آپ نے مثلا میں ایک اور کا طریقہ اس کا ہے. اگر آپ دیکھیں پریکٹیکلی سیکٹرز تو آپ کے بالکل 3 یا 4 سیکٹر ایڈ ہوئے ہیں پچھلے 20 سالوں میں، باقی تو وہی ہے. تو پاپولیشن کی سروس کے لوکیشنز مارک ہوتی ہیں. پلاننگ ونگ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوکیشنز مارک کرتا ہے کہ کن لوکیشن کا آپ بورڈز لگا سکتے ہیں جہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ بھی پراپر ہو سکے لیکن ٹریفک اور سٹی کے اوپر امپیکٹ بھی اس کا منیمم ہو. لیکن سندھو صاحب، یہ جو پلازوں کے اوپر بورڈ لگے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پلازے کا مالک ہے، اس نے اپنی چھت کے اوپر ایک بورڈ لگا لیا ہے، وہ نیچے سے ادھر سے کرایہ لے رہا ہے، اوپر بورڈ کا کرایہ لے رہا ہے، تو اس کی اجازت سی ڈی اے دیتا ہے پلازے والوں کو؟ مانگٹ صاحب، اب قمیض اٹھانی خاصی مشکل ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ بالکل اس وقت کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. جس کی اجازت تھی، میں نے جو کمیٹی کہا نا، وہ کمیٹی یہ دیکھتی تھی نمبر 1 کہ کیا اس کا جو روف کا سٹرکچر اسٹرینتھ ہے وہ ہم باقاعدہ ایویلیوٹ کراتے تھے کہ وہ کتنا لوڈ کتنے بورڈ کے سائز کا لے سکتا ہے. اگر ہمارا سٹرکچر ڈائریکٹوریٹ اس کو ویریفائی کرتا کہ اس کا یہ لوڈ اتنے تک لے سکتا ہے تو اس بلڈنگ پہ اس کو ان لمیٹڈ نمبر الاؤ کیا جاتا. یہ نہیں کر، اب تو کوئی ہے ہی نہیں چیز، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ سٹرکچر اسٹرینتھ کیا ہے. بات سمپل، جس کا دل چاہتا انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا ہے. پرائیویٹ فرمز کو انہوں نے دے دی اتھارٹی کہ وہ یا ایڈورٹیزمنٹ کا سی ڈی سے لائسنس لے کے تو کر لیتے ہیں جہاں مرضی. اب ان کا نہ سائز ڈٹرمنڈ ہے، نہ ان کا یہ کہ اس کے پہلے کنسیڈریشن جو ہے وہ ہے. سی ڈی اے کی انکم جو ہے وہ شاید تھوڑی بڑھ گئی ہو، لیکن نمبر آف بورڈز کے حساب سے شاید اب کم ہے. پہلے کم نمبر آف بورڈ ہوتا ہے، انکم زیادہ ہوتی تھی. لیکن سی ڈی اے تو پھر بھی رو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تنخواہ نہیں ہے. مانگٹ صاحب، اس کا جواب تو سمپل سا ہے کہ 10% لوگ کام کر رہے ہیں، 90%
या प्रोटोकॉल की ड्यूटी कहता है, प्रोटोकॉल ये नहीं कि ऑफिशियली, अनऑफिशियली, मतलब कोई एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसको मौका मिला तो वो ट्रैक्टर के पीछे पीछे वायरलेस उठा के चल पड़ा। बड़े तलख है। कोई, मैं आपको नाम लिए बगैर के, मैं जब डीजी था तो मेरे पास एक ऑफिशियल आया ग्रेड 17 का कि सर वो अगर कोई बिल शिल जमा को काम हो तो मुझे बताया करें। मैं कहा यार मुझे माफी दे दो, बिल मैं घर जमा करवा लूंगा, आप अपना काम करो। उसके बाद उसको समझ आ गई। लेकिन इधर आप कभी एक डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर देखें, आजकल नया रिवाज है, डिप्टी डायरेक्टर पीएस बैठाया हुआ है, और भाई डिप्टी डायरेक्टर को तो स्टेनो टाइपिस्ट अलाउड है, पीएस नहीं। ऐसा स्टाफ जो है ना, पीएस तो सर जाके ग्रेड 20 में होता है, ग्रेड 19 में भी स्टेनोग्राफर होता है। यानी ये वो जहाज है जिसमें ज्यादा सवारियां हैं। ज्यादा सवारियां, मतलब पीआईए है ये। पीआईए। तो जैसे मैंने शबर जैदी साहब का एक दिन इंटरव्यू सुन रहा था, ही इज प्रोफेशनल, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उन्होंने एफबीआर के बारे में ये बात की थी कि 23,000 में से 5,000 रखें, 17,000 को निकालें ना, लेकिन उनको कहें कि यार मेहरबानी तुम दफ्तर ना आया करो, आने जाने का खर्चा और जो बाकी जो बातें वो बच जाए। इसको एक रैशनलाइज करने की जरूरत है। लेकिन इवन देन ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, फंक्शंस बहुत ज्यादा है, लेकिन टू द पॉइंट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को लोगों लगाना चाहिए, तो आपका ह्यूमन रिसोर्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। इससे मिलती जुलती बात यह है कि इस वक्त सीडीए में मैं अब थोड़ा सा, कि मेरा एक टीचर था यूसीएल पे, माइकल मेटिंगली, उसका कहना माइकल हाउ आर यू, उन्होंने कहना आई एम फाइन लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बात यह कि सीडीए का भी उसी तरह ही है कि कोई टेक्निकल बंदा जो है वो टेक्निकल पोजीशन के ऊपर लगाना जुर्म समझा जा रहा है। डीएमए, एनफोर्समेंट, ऐसी चीजों पे, या जहां पे एक प्रोफेशन का बंदा दूसरे प्रोफेशन में होना चाहिए, मतलब बिल्डिंग कंट्रोल है, तो वहां पे ये समझा जाता है। जब हमने एक उस दिन बात की थी सिटी सीवरेज की, एक जमाना है कि आपका जनरल कैडर का बंदा जो बीए या मैक्सिमम एमए होगा, उसको डायरेक्टर सिटी सीवरेज का चार्ज था उसके पास। यार वो क्या करेगा उसके साथ, वो सैनिटेशन के साथ क्या करेगा? तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ता है कि जब नॉन प्रोफेशनल लोग आते हैं तो उनको काम नहीं होता। नहीं, तो आपकी भी राय ये है कि सीडीए के जो 70-80% जो लोग हैं उनको कहा जाए यार घर बैठो, आपकी तनख्वाहें आ जाएंगी, क्योंकि वो दफ्तर आके वो काम तो अपना करते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करने की जरूरत है। मॉनिटर तब होगा जब सही बंदा सही काम के लिए होगा। सही। सीडी में जनरल कैडर रहे, टेक्निकल कैडर। मैं बिल्डिंग कंट्रोल की बात आपको इसलिए कर रहा हूं ऐसे चलते चलते कि बिल्डिंग कंट्रोल में हम चेक क्या करते हैं, बिल्डिंग कंट्रोल में चेक करते हैं कि यार इसका यूज क्या होना चाहिए बिल्डिंग का, इसके सेटबैक्स ठीक है, इसकी हाइट ठीक है, नंबर ऑफ स्टोरी ठीक है। वो सारे टाउन प्लानिंग वाले करते हैं, लेकिन वहां पे टाउन प्लानिंग का बंदा टिकने नहीं देते। मजे वाली बात है कि वाइस चेयरमैन टाउन प्लानिंग पीकेट भी बाय डिफॉल्ट डिजाइन वेटर कमेटी का मेंबर होता है। मैं 3-4 मीटिंग में गया तो मैंने इनके केस पकड़ने से मना दिया, नो इसका क्या है, प्लानिंग परमिशन किधर है, प्लानिंग क्या है, तो उन्होंने मेरा नाम निकाल दिया। मैं इससे हट के कि जब तक टेक्निकल बंदों को मुझे ना लगाएं, कोई और टेक्निकल बंदे को लगाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली जो ह्यूमन रिसोर्स का नंबर है ये कम हो जाएगा, आपको कम एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। सही। तो तनख्वाहें दें जो भी दें, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एडवर्टीजमेंट जो है ये लाइफ रिस्क बन जाते हैं। बोर्ड जो है वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आपने लेफ्ट करना, लेफ्ट में बोर्ड लगा हुआ है और लोकेशन के ऊपर, आप उसकी विजिबिलिटी नहीं है, एक्सीडेंट होगा। आप जा रहे हैं, सामने बोर्ड ऐसे लगा हुआ, एलसीडी लगी हुई है, आप देखें, आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी और बंदा ट्रैफिक से, आप रोड से हट गए, आप बिल्कुल रोड में आप जा रहे हैं, अगर आप इस तरह देख रहे हैं, ड्राइवर हैं, गाड़ी कितने कहीं लग जाती। और इस वक्त बड़ा इंटरनेशनली ये बड़ा सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न बन चुका हुआ है, इसको रिसर्चेज हो रही हैं बिल बोर्ड के हवाले से। यस, एडवर्टीजमेंट जो करते हैं आप इसके हवाले से। एक और इसकी सबसे बड़ी न्यूसेंस ये है कि स्टीमर लगाते हैं या बोर्ड लगाते हैं ना, परमिशन में लिखा होता है कि जनाब आप ये क्लियर करेंगे जब आपका टाइम खत्म होगा। कोई क्लियर नहीं करता। आप खंभों के साथ चले जाए, आपके स्ट्रीट लाइट पोल्स के ऊपर इतने इतने लंबे धागे टनों के हिसाब से लटके हुए हैं साथ, किसी स्टीमर की टांग ऊपर को है, किसी की नीचे को है।
ये भी एक पॉल्यूशन है। हाँ तो yes. मेरे भाई इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी हेडेड बाय डिप्टी डीजी प्लानिंग, नॉमिनेशन ऑफ रेलेवेंट डायरेक्टरेट्स हो तो फिर इसको इफेक्टिव। जो संधू साहब जो आप बता रहे हैं कि एक कमेटी बनाई गई थी, वो अपनी मौत आप मर चुकी है या जिंदा हो सकती है? जिंदा हो सकती, क्योंकि वो पॉलिसी डिसीजन था, लेकिन उसको मैंने जाकर डिसफंक्शनल कर दिया गया कि उसकी अहमियत ही नहीं, उसकी मीटिंग नहीं होती, वहां जाते ही नहीं। मेरे भाई छतों के ऊपर आपके इस वक्त एक बहुत बड़ा न्यूसेंस है, जो ये टावर्स लगे हुए हैं। सही। इन टावर्स का कोई नहीं सेक्टर, इसकी स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ क्या है। तो मेरा ख्याल है जो बिल बोर्ड्स लगे स्पेशली छतों के ऊपर और ये टावर्स हैं, इनको उस कमेटी में ले जाया जाए ताकि वहां से देखा जाए कि यार ये कोई बहुत बड़े वाकया ना हो जाए इससे कि गिर ना जाए। सेक्टर स्ट्रेंथ उसकी छत की क्या है, छत के साइज का लोड ले सकती, फिर उसकी विजुअलिटी देखने की जरूरत है। तो उस कमेटी को फंक्शनल, वो कमेटी मौजूद है, उसको फंक्शनल करने की जरूरत है और उसके लिए किसी नई ऑर्डर नए डिसीजन की जरूरत नहीं है। चेयरमैन साहब और जो मुतलका मेंबर बस हल्का सा दस्तक देनी है कि उठो भाई थोड़ा काम, उठो भी थोड़ा काम आ गया है, बस। और ये शहर में आप देखेंगे कि बड़े बड़े बिल बोर्ड्स, बड़ी चीजें, जो इससे ठेकेदार तो कमा रहा है, लेकिन जो एक्चुअली टेक्निकल एंगल्स है उसको इसमें हम जो है ना मिस कर रहे हैं। अच्छा संधू साहब, ये मुझे बताइए, जो आपने टावर्स की बात की है, जो ताकतवर लोगों के प्लाजे हैं उनके ऊपर टावर्स लगे हैं, सीडीओ को पूछते हैं कि यार असली टावर लाने लगे? जी नहीं पूछते। एक दफा ये सर्वे हुआ था, 90% विदाउट अप्रूवल थे। एक और मैं बताऊं, कोर्ट से फैसले मौजूद हैं कि इसको शहर से हटाया जाए और सीडीए लोकेशंस जो है वो पहाड़ों के ऊपर या हाई राइज तरह के दे जहां पे ये शहर को, इसको पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट ना आए। दूसरा ये था कि एक एक टावर 4-4 कंपनीज, 5-5 कंपनी आराम से शेयर कर सकती हैं। मैं आपको फिर बताऊंगा कि व्हेन आई वाज डीजी प्लानिंग, तो मैंने मजबूर किया लोगों को, जितनी ये टेलीकॉम की कंपनीज हैं, कि एक टावर किसी को नहीं मिलेगा, 3-4 कंपनी शेयर करे, और कंपनी ने शेयर किए। G94 में मैंने एक टावर लगा देखा, वो 3-4 कंपनियां शेयर कर रही हैं, तो ऑटोमेटिकली नंबर कम हो जाएगा। और छतों से उतार के ओपन एरियाज में लगाएं जहां पे इनका रिस्क मिनिमम होता है। क्योंकि जलजले के साथ खुदा न खास्ता जलजले क्या, वो जरा तेज हवा चले, तेजा कोई ऐसा तूफान आए, तो जब उस स्ट्रक्चर में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो होल्ड ही नहीं कर सकेगा, तो प्रॉब्लम होगा। और दूसरा, इससे बाकायदा रेज हैं जो ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं। सही। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इनको ओपन एरिया से लेके जाना, इसके कोर्ट के डिसीजंस मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, आपने बिल बोर्ड के हवाले से सारी गुफ्तगू सुनी, तो लगता है ऐसा है कि बिल बोर्ड माफिया भी एक अलग दुनिया है, फिर ये टावर्स वाली माफिया ये अलग दुनिया है। मसला सिर्फ यहाँ पे आ रहा है कि वो कानून को नहीं मानते। कानून क्या है? सीडीए। अब सीडीए ने अपने कानून पे खुद अमल दरामद करवाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि सीडीए वाले आरडीए वाले को कहें जाके कि भाई जी साढ़े ते जरा कानून पे अमल दरामद करवा लो। हालांकि सीडीए के पास अपनी फोर्स मौजूद है, पुलिस की मदद ली जा सकती है, लेकिन कानून पे अमल दरामद करवाना बहुत जरूरी है। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।